Hello everyone, welcome back to my YouTube channel where I share about my IIM interview experiences. So I just came back from my IIM Vishakhapatnam's interview and I thought I'll just straight away make the review video about this. So if you guys want to go and check out my profile and introduction video, the link is in the description. Please go and check that out and I'll dive straight away into the interview process. So my interview was on 18th of April in Bangalore and it was an offline interview. And once you go in there, you get allotted with a panel, and there are around 12 to 13 candidates per panel, so you are given a number accordingly. And let's start with the interview. So there were two panelists in my interview. Both were male, both were in the age of around 40 45. So the right male panelist started my interview, and the first question he asked me was, what is your ambition in life? तो मैंने उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि आई वॉन्ट टू बिकम अ बिजनेस लीडर एंड आई वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन अलॉन्ग विद एथिकल लीडरशिप एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई एक्सप्लेन दैट एंड उस पर हमारी थोड़ी सी कॉन्वर्जेशन हुई एंड दे वर वेरी वार्म एंड कॉन्वर्जेशनल थ्रू आउट द इंटरव्यू प्रोसेस. इवन दे ग्रीटेड मी वेरी नाइसली. So I don't remember what the second question was. There is one question which they asked which I forgot. After that, the thing that I was most afraid about, they started asking me questions on my electronics degree. तो मैं नहीं प्रिपेयर करके गया था और मैं यूजुअली इंटरव्यूज़ के लिए नहीं प्रिपेयर करके जाता हूँ, क्योंकि इफ़ आई जस्ट कवर द बेसिक्स इट्स नॉट इनफ and it is not feasible for me to cover the entire electronics course. So they started with what do you know about PN junction diode, a basic question on transformers, and then मैंने उनको clearly बोल दिया कि since I have been very out of touch with electronics and all of that, तो मैंने उनको बोला कि इसीलिए I am not able to answer all of these questions very confidently. So then they moved on from that topic and he asked me questions on monetary policy. He asked me, what do you know about the monetary policy in India? मैंने कहा कि I don't follow it rigorously, but if you have any specific questions, I'll try and answer them. तो उन्होंने बोला रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है वो एक्सप्लेन करो. वो मैंने उनको बताया. एंड देन ही आस्क्ड मी SLR रेशियो, तो मैंने उनको वो भी एक्सप्लेन किया. उसके बाद ही आस्क्ड मी व्हाट अदर कॉल्स डू यू हैव, और नो ही आस्क्ड मी डू यू हैव एनी ऑफर्स फ्रॉम एनी ऑफ द कॉलेजेस. सो आई टोल्ड देम येस आई हैव एन ऑफर फ्रॉम SP Jain. एंड देन ही आस्क्ड मी ओके व्हाट अदर IIM कॉल्स डू यू हैव. मैंने उनको वो भी एक्सप्लेन किया. तो he asked me, have you put in your notice and all of that. So I told him, yeah, I am on my notice period. And फिर इसमें IIM calls की priority, where do you keep IIM Vishakhapatnam and why, ये सब चीज़ों पर डिस्कशन हुआ. In the end he asked me one question that who is the commander in chief of the Indian Armed Forces. अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, बट उन्होंने मेरे को एक हिंट दिया दैट नील यू नो दिस आंसर, इट्स जस्ट दैट यू नॉट एबल टू टेल इट राइट नाउ. तो मैंने थोड़ा सा सोचा एंड देन आई रिकॉल्ड के हाँ, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस. तो मैंने उनको आंसर कर दिया. मूविंग ऑन नेक्स्ट टू द लेफ्ट साइड पैनलिस्ट, ही स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चन ऑन माई college as to why I chose BITS Goa, why did I not choose Pilani, why was Pilani my first preference and all of that. उसके बाद he also started asking me a few questions on electronics. He asked me the difference between precision and accuracy and how is it relevant in the case of a screw gauge. And then he asked me a couple of more questions on screw gauge जो मैं इतना अच्छे से आंसर नहीं कर पाया. प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी आई वॉज एबल टू आंसर करेक्टली, बट उसके आगे वाले क्वेश्चंस में आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट. देन ही आस्क्ड मी दैट व्हाई डू यू वांट टू डू एन MBA डिस्पाइट हैविंग अ रियली गुड जॉब विद अ गुड पैकेज राइट नाउ. एंड देन उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या प्लेसमेंट में बैठने वाले हो. तो मैंने उनको बोला हाँ, आई विल बी सिटिंग फॉर प्लेसमेंट्स. तो ही आस्क्ड मी कि अच्छा नील, मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ जो कि एक्चुअली होती है. तो लेट्स से कि आपका करंट पैकेज इज़ 20 lakhs, ठीक है, एंड अगर आप IIM वाइजैक के प्लेसमेंट्स में बैठते हो तो एक कंपनी आती है, मल्टीपल कंपनीज आती है जिनको आप बहुत अच्छे लगते हो एज अ कैंडिडेट और एज अ फ्यूचर एम्प्लॉई, बट दे वोंट बी एबल टू हायर यू क्योंकि उनकी जो सैलरी लिमिटेशंस है, जितना वो कंपनसेशन आपको दे सकते हैं, दैट इज़ लेस देन 20 lakhs. सो ऐसा नॉर्म होता है प्लेसमेंट में. अगर पहले से वर्क एक्स के साथ आ रहे हो, जितना आपका पहले कंपनसेशन होता था उससे ज़्यादा ही कंपनसेशन ऑफर कर सकती है आपको कंपनीज, उससे कम नहीं कर सकती. सो आप कितने भी अच्छे कैंडिडेट हो, वो लोग आपको ऑफ़र ही नहीं कर पाएंगे अगर उनकी लिमिटेशन हुई.
तो वुड वाई आर यू टेकिंग दिस रिस्क. तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि सर ऑफ कोर्स मेरे लिए प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है कि अगर मेरा प्लेसमेंट नहीं लगा तो मेरा आई एम वाइजैक आना या किसी भी स्कूल में जाना विल बी कंसिडर्ड एज अ फेलियर और विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ गुड डिसीजन. मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मेरा ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं भी होता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीज़न, तो मैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ट्राई करूँगा कनेक्टिंग वाया एल्यूमिनाई. एंड इन केस अगर वहाँ भी सक्सेस नहीं मिलती है तो मेरा लॉन्ग टर्म गोल तो यही है कि मेरे को अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है. एंड टू परस्यू दैट गोल आई वुड रैदर स्टार्ट अर्ली देन लेट, एंड देन वहाँ से ही मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर दूँगा. मे बी इट विल टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम, बट आई थिंक that would be a good way to go at that particular stage. So he was very satisfied with this answer. And then he asked me a question which I was a bit surprised, and मैं इसमें थोड़ा सा fade out हो गया था. I was not able to answer this. He asked me that, okay, so since your hometown is Rajasthan, let's say you travel by road from Rajasthan to Vizag, so which are the states that you are going to cross? तो आई स्टार्टेड विद राजस्थान, देन मध्य प्रदेश. उसके बाद मैं थोड़ा सा फेड आउट हो गया, मेरे को मैप क्लियरली याद नहीं आ रहा था. आई सेड तेलंगाना, एंड ही सेड दैट नो, मध्य प्रदेश डजंट शेयर अ बॉर्डर विद तेलंगाना, देयर इज़ वन अदर स्टेट यू आर मिसिंग. आई ट्राइड बट मैं भूल गया था. छत्तीसगढ़ वॉज द स्टेट दैट आई वॉज मिसिंग, एंड देन उसके वाया हम लोग ट्रैवल करने वाले थे. बट या आई गॉट स्टक अ लिटिल बिट देयर. Then the last question he asked me was can you explain me what you exactly do at your company? तो मैंने उनको मेरा काम एक्सप्लेन किया एंड उस पर उन्होंने कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की. सो दैट वाज माय ओवरऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस, एंड आई वुड रेट माई सेल्फ 6/10, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस के अलावा, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक दो क्वेश्चंस के अलावा आई वाज एबल टू आंसर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, एंड ऑनेस्टी से आंसर किया है मैंने, तो आई थिंक दैट शुड काउंट. इसके अलावा एज एंड व्हेन द रिजल्ट्स आर आउट आई विल लेट यू गाइज नो. And that's it for now. Thank you for your response to my IFT video. That video got a really good response. The SP video is still getting a good response, so just keep giving your suggestions, keep sharing the content, and thank you very much.